Okay, we'll start. Um, so Hare Krishna, everyone. Thank you for joining us today. And we'll start our chapter number 4 from slok number 11 till 15. So we'll start with Mangalacharana. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Raghunatham Vritam Satam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurtise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivit Patihi Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Shuta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhaonmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunj Viharinam राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So thank you everyone once again for joining, and as discussed, we'll start our chapter text number 11 to 15. But as a procedure, it's a time for recap. So क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट वीक? Hiran Prabhu, you want to share something? Okay. પ્રભુ Yes, લાસ્ટ ટાઈમમાં આપણે કૃષ્ણ ભગવાને એમ કીધેલું હતું કે મારા રૂપ દિવ્ય જ્ઞાન અને મારા સ્વરૂપ વિશે જે જાણી જશે તે આ પૃથ્વીના જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી મુક્ત થઈ જશે અને પછી એમણે એ કીધેલું કે પેલું શ્લોક યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. એટલે ધર્મનું ગ્લાનિ એટલે જ્યારે જ્યારે પેલું નુકસાન થશે ત્યારે હું અવતાર લઈશ. ધર્મ એટલે આપણા જે ચાર વર્ણ હોય છે એ ચાર વર્ણ પ્રમાણે પદ્ધતિ પ્રમાણે નથી એ લોકો મનુષ્ય જ્યારે કરશે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો ત્યારે ભગવાન અવતરિત થશે અને આ વિશે ચર્ચા થયેલી. very nice. So Varna and Ashrama. So Varnashram Dharma. If people stop, people getting degraded, जब वो लोग अपने इस धर्म की following में then they will start degrading. At the time it's called the, he has to appear. Now there is one other catch which I haven't mentioned. भगवान ने यहाँ पे कहा कि संभवामि युगे युगे, right? I will come every yug. So some of the person has asked me the question कि कलयुग में nowadays there is a lot of adharma is happening, so why he didn't appear, right? So any thought on that? एक सिंपल सा आंसर है इसमें. Any guess? Maybe Prabhu, Krishna will appear when it will be like on its like Seema Charan, when it will be on top. Yeah. So Kali Yuga he already going to appear into 3 times. So other yuga he appeared once probably, but in can you mute please? Yeah. But in Kali Yuga he already appeared twice. First as Gautam Buddha, second is Chaitanya Mahaprabhu, and third would be Kalki. But the answer to question is why he's not appearing on day-to-day basis. The thing is he mentioned as he's going to appear yuge yuge. He didn't mention as dine dine. If he says dine dine, then probably he would appear then every month. But he mentioned as yuge yuge, so he will appear per yug, not by the days. And another point. Sandeep Prabhu? Yes. Rajesh want to share something. Yes, please go ahead. Hare Krishna. Hare Maybe because like you don't have like strong enough senses that you can like see his presence. Yes, that is true. He's present. Yes, that is very nice way of looking into this, Radhe, that he's omnipotent. He's present even every time he's present inside you. But we are lack of the senses that we cannot. We are lack of the spiritual senses that we can realize him. Yeah, that's a very good point. कुछ और question I can just ask to the people so they can get connected. So what is the meaning of Raj Rishi? We discussed last time. A sober person. Yeah, that's true. Sober person, but I use a specific definition last time. I think you were not present. So I asked, I mentioned this, what is the meaning of Raj Rishi?
So anyone else also want to share who is a Raj Rishi? Prabhu, Yes. you told that Raja in older days, like they have like knowledge. They were like so knowledgeable. Like they used to go to gurukuls, and like they used to have knowledge like rishis before. So they were the king who has a political knowledge as well as the scriptural knowledge. Yes. Yeah. Yes. Okay. What is the difference between Krishna's body and our body? This is just to awaken your connection, what we discussed last time. So someone else want to answer this one? Krishna's body. Hello. Yes, Dev Prabhu. Sir, my name is Kashyap. Oh yes, sorry Kash. I cannot see you. Okay. Yeah. Yes. Okay. So basically, our body is made up of the 5 elements like earth, water, fire, etc. While Krishna's body is basically made up of spirit. Yes, so he has a It's spiritual body. from the soul. Yeah. Yeah. He has got So, a spiritual body. yes, and his body don't deteriorate, our body deteriorate. We have to change the body every time when we come on this planet, and our existing body has to be buried or burned or whatever it is. But his body is his body never deteriorate. So he has a complete spiritual body. Perfect. Anything else you want to tell? Vyasacharya Prabhu, you were telling something. We made up, we have quality of forgetfulness, which is Krishna, remember the past, present, and future. Yes. Yes. Yes, because he don't change his body, so he remembers Right. everything. Yes. While we leaving the body, we lost everything, right? Yes. In memory wise. Yes. Perfect. Okay, so we'll start with our today's session, and we have one question as well. It's the question is I just describe the question so it will interest you. That the person asked me that I was referring some bhajan and the lyrics described in the way where lyricist mention ki Krishna, you are so merciful, you deliver all the demons as well, you have to deliver me else people will taunt you, etc, etc. That is a kind of lyrics. So uska माता जी का question था कि we humans are very smart, right? But as per the above lyrics that जो लेखक ने लिखा है कि if you do all kind of sense pleasure and live the life full on materialistic way with sense gratification and at the end will worship Lord, then would it be sufficient? We'll get delivered out of it. How far it is true, please let me know. So this question we'll cover at the end. We'll start with our text number 11. Okay, so the text number 11 says, Ye yatha mam prapadyante tansathaiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manushyah partha sarvashah. भगवान कह रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूं. इसलिए हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है. तो भगवान ये श्लोक बहुत ही फेमस है कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं. ये यथा माम प्रपद्यन्ते. सो भगवान ने एक लॉ बनाया हुआ है कि तुम जिस तरीके से मुझे देखोगे, या अर्थात तुम जिस तरीके से मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे या तुम जिस तरीके से मेरे से अपना रिलेशन बनाओगे, मैं उसी तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करूंगा. तो किसी ने अगर भगवान को अपना मित्र समझा है, जैसे सुदामा, राइट, सो भगवान उससे मित्र की चरम सीमा तक जाके उससे अपनी मित्रता निभाएंगे. अर्जुन के लिए प्रभु सारथी बने, अर्जुन की लाते खाई भगवान ने, राइट.
सुबह सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक भगवान अर्जुन की लाते खाते थे, क्योंकि सारथी बनना इतना आसान नहीं है। सारथी का बनना इज नॉट ओनली ड्राइविंग द चैरियट। युद्ध के कोलाहल में आपको सारथी को कहना है कि यू टेक अ लेफ्ट और द राइट, यू कैन नॉट टॉक टू हिम, बिकॉज उनका ध्यान रहता है सामने वाले शत्रु के बाजुओं पे, कहाँ पे तीर छोड़ना है। एंड कोलाहल इतना रहता है कि यू कैन नॉट मेंशन द टेक अ राइट टेक अ लेफ्ट, इट वोंट बी ऑडिबल। तो उस समय जो रथी है उसको अपने सारथी को लातों से बताना पड़ता है उसकी बैक पे। सो जो सारथी है उसकी बैक पे रथी को लात मारना है। अगर लेफ्ट पे किक करेगा देन ही हैज टू टेक लेफ्ट, राइट पे किक करेगा ना ही हैज टू टेक अ राइट। सो सिमिलरली सिंस सूर्य उदय टू सूर्य अस्त भगवान क्या करते, अर्जुन के पैरों की लाते खाते थे। ही हैज टू गेट द किक। भगवान इतना ही नहीं, जो भगवान सोते थे शामियाने में, वो भी ही डोंट हैव अ स्पेशल शामियाना, ही इज टू स्लीप विद द अदर सारथी। भगवान ने झूठे पत्तल उठाए राजसूय यज्ञ के अंदर। सो मित्र की चरम सीमा पे जाके प्रभु ने अपनी मित्रता का जो है रिलेशन निभाते हैं। व्हेन ही इज बिहेविंग, इफ यू ट्रीट हिम एज अ किड, जैसे यशोदा माता, नंद बाबा, देवकी, वासुदेव, ही बिहेव एज अ किड। अगर गोपी उन्हें अपने प्रेमी के स्वरूप में भजती है, अपने अपने गोपीजन उन्हें अपने सखा के स्वरूप में भजते, तो प्रभु उनसे अपने सखा और प्रेमी का रिलेशन अदा करते हैं। बट इफ द पीपल ट्रीट हिम एज अ एनिमी, he will give a pleasure as an enemy also. And the people, someone treat him as a stone, पत्थर, तो भगवान उससे पत्थर के तरीके से ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सही भाव दिया है ब्रजवासी संतों ने कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थैव भजाम्यः। ये जब संवाद आता है उद्धव और कृष्ण के बीच में, तो उद्धव को भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मैंने ये अपना एक वचन लिया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे साथ जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करेगा, मैं उसके अनुरूप ही उससे वर्तन करता हूँ, या उसके अनुरूप ही उसके साथ अपना वर्तन निभाता हूँ। लेकिन मेरा जो ये स्टेटमेंट है, मेरा जो ये वचन है, वो मिथ्या साबित होता है इन गोपियों के सामने। भगवान कहते हैं कि गोपियों के सामने मेरा ये वचन झूठा हो जाता है, क्योंकि जितना प्रेम या जितना सरेंडर या जितनी भक्ति वो मुझे करती है, उसके हिसाब से मैं उनके साथ उतनी भक्ति या उतना प्रेम वर्तित नहीं कर पाता हूँ। और उसी को निभाने के लिए फिर भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया, और भगवान ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की भक्ति की चैतन्य महाप्रभु बन के, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ दैट डिवोशन। क्योंकि देखिए गोपी जो है, गोपी भक्ति की चरम सीमा पे इसलिए है, किसी ने मुझसे पूछा था कि श्रीमद् भागवतम में कहीं भी किसी गोपी का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि गोपी का नाम है ही नहीं। रसिक लोग ये कथाएं बताते हैं कि जब गोपी को भगवान ने पूछा, जब भगवान ने अपनी बांसुरी से गोपियों का आह्वान किया, देखिए ये भी आपको मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान के पास हमेशा आप भगवान के हाथों में एक बांसुरी देखते हैं, लेकिन वो बांसुरी भी 3 प्रकार की होती है। उन बांसुरी का नाम है नंदिनी, मोहिनी एंड आकर्षणी। नंदिनी जो है वो जिससे भगवान सभी जीवों को, सभी समस्त वृंदावन वासियों को, लता पताओं को आकर्षित करते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते हैं। जो मोहिनी है, जो भगवान किसी के समय ही किसी किसी स्पेशल टाइम पे ही उसका आह्वान करते हैं और उसमें सूर फूकते हैं। जिसकी जैसे एक उदाहरण है शरद पूर्णिमा की रात, जिस दिन महारास हुआ था, उस दिन भगवान ने मोहिनी का आह्वान किया और मोहिनी का सुर फूका। तब भगवान, द थिंग इज स्पेसिफिक पीपल जिसको भगवान को बुलाना है, उसी को वो सुनाई देते हैं स्वर, और वही उस समय आता है, हर कोई नहीं आता है। जब भगवान ने, आप सुनोगे श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन, जब भगवान ने बांसुरी बजाई, तो गोपी जहां जहां भी थी, जो गोपी आ सकती है सधे स्वरूप से वो आई, जो नहीं आ सकती मर्यादावश, वो अपने सूक्ष्म स्वरूप को धारण करके वहां पे चली गई। कहाँ पे? रास मंडल की भूमि पे। तो उन स्पेसिफिक गोपियों को ही वो सुनाई दिया स्वर उस मोहिनी का। फिर आकर्षणी जो है, आकर्षणी जब भगवान फूकते हैं, तब वो पूरे एक ब्रह्मा के दिन तक सभी गोपियों को वो सुख प्रदान करते हैं, जिससे वो सब आकर्षित होकर भगवान की रासलीला का आनंद प्राप्त करती है। तो जब भगवान ने
मोहिनी का आवाहन किया जब वो गोपी आई, जो कुछ गोपी सूक्ष्म स्वरूप से आई, कुछ गोपी अपने सधे आई, उस समय भगवान ने जो गोपियों से पूछा कि कौन, तब गोपियों ने आंसर क्या दिया? गोपियों ने कहा कि त्वयि, अर्थात कि आपकी। यहाँ पे गोपी ने अपना नाम भी नहीं बताया, अपना कुल गोत्र, अपना संप्रदाय, अब कौन सा टीका है, कुछ नहीं। सिर्फ अपना डेफिनेशन क्या दिया गोपियों ने? प्रभु हम त्वयि है, त्वयि अर्थात आपकी। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ गोपी, त्वयि। उसके ऊपर गोपी की कोई डेफिनेशन नहीं है। और तभी वो भगवान के रस रूपी प्रेम का आस्वादन करने की भागीदारी बनी। अगर उनके पास कोई उपाधि होती तो भगवान को लगता कि नहीं, अभी भी ये फल थोड़ा कच्चा है, उसको पकने में टाइम लगेगा, ये पात्र थोड़ा कच्चा है। लेकिन जब भगवान ने सिर्फ सुना कि त्वयि, अर्थात समझ गया कि इसके पास और कोई उपाधि नहीं है, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, वो सर्व उपाधि से मुक्त है, वो सिर्फ मेरी है, तब भगवान ने उसे रसदान प्रदान किया। इसीलिए आप अगर गोपी गीत सुनेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो गोपी क्या कहती है कि सूरत नाथ ते शुल्कदाशिका वरदनीग्नतो नेह किम वदा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 30वें चैप्टर का दूसरा श्लोक। सूरत नाथ ते शुल्क दासी का, हम आपकी निशुल्क दासी है, हमारा कोई मोल नहीं है, हमारा सिर्फ जो आइडेंटिटी है वो क्या है? सिर्फ आपकी दासी, त्वयि। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो ये डेफिनेशन है, मेरा जो ये वचन है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तैव भजाम्यहम्, ये गोपियों के सामने नहीं लगता। मैं उनके वर्तन के अनुरूप, उनके प्रेम के अनुरूप, उनकी भक्ति के अनुरूप मैं उनके साथ वर्तन नहीं कर पाता हूँ। So this is what ye yathamam prapadyante. Any question on this one? Okay, so देखते हैं प्रभुपाद क्या समझाते हैं. If someone wants to read this. Prabhu, so, I have a question. So what is the difference between Mohini and Akarshini, Basuri, because they both are for gopis, right? Actually, you can say they all three are for the gopis or Brajvasis. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आपने कुछ पिक्चर्स देखे होंगे भगवान के, उसमें आपने एक पिक्चर देखा होगा जहाँ पे भगवान रास कर रहे हैं, सिर्फ रास मंडल का पिक्चर है, हर एक गोपियों के साथ कृष्ण है. दूसरा आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उसमें आपको ये जब शरद पूर्णिमा की ऋतु आती है, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, तो भगवान ने अपनी बांसुरी पे सुर छेड़ा और गोपी अपने घर से सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास आई. जो गोपी सदे आ सकती है वो सदे आई, जो गोपी नहीं आ सकती सदे, वो ध्यान में बैठ के अपनी ध्यान मुद्रा में अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करके आई. सो ये जो सुर है स्पेसिफिकली भगवान का, उस समय हर एक को सुनाई नहीं देता. जब भगवान चाहते हैं उसी को सुनाई देता है. जब भगवान जिसे चाहते हैं वृंदावन बुलाना, भगवान चाहते हैं कि तुम वृंदावन आओ, उसी को वो स्वर सुनाई देता है. आप में से भी बहुत सारे लोगों को भगवान को वृंदावन जाने की लालसा उत्पन्न हुई, तो समझना कि आपको कहीं ना कहीं भगवान की मोहिनी सुनाई दी. सो उस समय भगवान की मोहिनी सुन के उस भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं उसी को उसके स्वर सुनाई देते हैं, वो ऐसे स्वर फूकते हैं. आकर्षणी जो है, आकर्षणी जो है, जो भगवान आकर्षित करके रखते हैं. अब सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें मुंडन वर्ड में, तो हमें अगर भगवान ने बुलाया है वृंदावन, हमें मोहिनी सुनाई दी, लेकिन हम वहां पे व्रजवास कर नहीं पाए. क्यों? क्योंकि हमारे पास आकर्षणी के स्वर नहीं है अभी तक. हम वहां पे व्रजवास कर नहीं पाए, हम भक्ति में टिक नहीं पाए. हम वहां से जाते हैं और एक जैसे वेव्स आती है समुद्र में, कभी तट तक आई, कभी वापस चली गई, वैसे ही बहुत सारे लोगों को मोहिनी सुनाई देती है, वो जाते हैं भगवान की भक्ति की ओर, भगवान की सेवा की ओर, भगवान की आराधना की ओर, लेकिन वापस से चले जाते हैं. तो आकर्षणी उनके लिए है जो टिके हुए हैं, जिसको भगवान की वो आकर्षणी सुनाई दे रही है, भगवान से वो आकर्षित मिला है, आकर्षण मिला है, तो ही दे वर अटैच्ड विद दैट भक्ति और डिवोशन. तो ये गोपियों को भी जब भगवान ने महारास के लिए आमंत्रित किया, तब उनको मोहिनी सुनाई दी. आकर्षणी को फूंक के प्रभु ने उनको आकर्षित करके रखा उस रास मंडल में, पूरे उस महारात्रि तक पूरे रास को खेलने के लिए. Is that answer your question? So Yes, Akarshani is for
holding the people, holding the gopis or holding the devotees. Mohini is to just get them into the rasa. And Nandini is for everyone. भगवान जब नंदिनी फूकते हैं तो मयूर, पुष्प, सब लता पताए, इवन यमुना का जल, सब पशु पक्षी, गाय, सब सुन के मोहित होके भगवान के साथ नृत्य करती है. That is what Nandini is. Nandini is for everyone. When he play in Vrindavan, everyone can listen Nandini. Right? Mohini is for call the people specifically, and Akarshini to sustain them into that rasa. So there are three kind of Bansuri he flew. Ji, bro. Okay. Yes, bro. Okay, someone wants to answer this. Someone wants to read this. Prabhupada purport. Yeah, Hare Krishna Prabhu, I will read Yes, it. yes, Mataji. When Krishna entered the wrestling arena with Balram and their friends, he appeared differently to different people according to the different relationships with him. Krishna is the reservoir of all pleasure and all kinds of rasas, both favorable and unfavorable. He appeared to the wrestlers exactly like a thunderbolt. To the people in general, he appeared as the most beautiful personality. To the females, he appeared to the most attractive male, Cupid personified, and thus he increased their lust. The cowherd men who were present there looked upon Krishna as their own kinsman, coming from the same village of Vrindavan. The impious Kshatriya kings who were present saw him as the strongest ruler and their justicer. To the parents of Krishna, Nand and Yashoda, he appeared to be the most loving child. To Kamsa, the king of the Bhoja dynasty, he appeared to be death personified. To the unintelligent, he appeared to be an incapable personality. To the yogis present, he appeared to be the super soul. Yes. So that is what Prabhupada mentioned here, that Krishna deals with the different kind of devotee, with the different kind of rasas. So based on what rasa you develop, अगर आप भगवान के मित्र हैं तो प्रभु आपसे मित्र मिलके मिलेंगे. अगर भगवान को आप पुत्र के तरफ से देखते हैं, जैसे पुष्टि संप्रदाय, तो भगवान आपको एक लल्ला की तरह सुख प्रदान करेंगे. लेकिन अगर भगवान को आप किसी एनिमीज की तरह देखेंगे, तो जैसे कंसा को डील किया प्रभु ने, वैसे आपको डेथ पर्सोनिफाइड की तरीके से भी वो मिलेंगे. एंड द पीपल हु इज एथियस्ट, हु डोंट बिलीव इन कृष्णा, भगवान कहते हैं कि मैं उसे मृत्यु के समय काल के स्वरूप में मिलता हूँ. सो जैसा जैसा भाव रहेगा, आपको वैसे वैसे ठाकुर जी के दर्शन होंगे और ठाकुर जी मिलेंगे. जैसी रही भावना, जैसी रघुमीरत देखी तीन तैसी. तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है वो बहुत अच्छा है. इट्स नेल डाउन ऑन दिस श्लोका कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम. श्रीमद् भागवतम का चैप्टर नंबर 2, सॉरी स्कंद नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, टेक्स्ट नंबर 10 क्या कहता है कि पर्सन हु हैज अ ब्रॉडर इंटेलिजेंस, अगर कोई बुद्धिमान है, देन वो क्या करेगा. Let me see, wait a second. हाँ, person with the broader intent, what he will do, whether he will be in full of all material desire, या तो उसके पास बहुत ज्यादा material desire है, उसकी कामना है, या वो भक्त है. अगर उसके पास material desire नहीं है, राइट, या उसके पास डिजायर का कौन सा डिजायर है, लिबरेशन का, मुक्ति का डिजायर है. कोई भी डिजायर हो, चाहे वो डिजायर रहित हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे उसके पास बहुत सारे डिजायर्स हो, बहुत सारी कामना हो, या चाहे उसे मुक्ति का डिजायर हो, व्हाट इज द बॉटम लाइन, मस्ट बाय ऑल मीन्स, हर किसी तरीके से आपको क्या करना है, टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. अगर आपके पास डिजायर हो, डिजायर नहीं हो, आपको मोक्ष की कामना हो, कुछ भी हो, आपको किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. दैट्स व्हाट श्रीमद् भागवतम सेज. क्योंकि आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को सेटिस्फाई कौन करेंगे, ठाकुर जी, राइट.
Moving to the next one. Kankashantah karmana siddhi. Kankashantah karmana siddhi yajanta iha devata. Shripam hi manushe loke सिद्धि भरवर्ती कर्मजा। कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, और निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इस संसार में मनुष्य रहते हैं, जिनको सकाम कर्म से सिद्धि की प्राप्ति करनी है, उसके कारण वो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन निस्संदेह इस संसार में भगवान कह रहे हैं कि आपको डेमीगॉड वर्शिप से जो है वो फल की प्राप्ति शीघ्र होगी, बिकॉज यू आर वर्शिपिंग द डेमीगॉड्स, राइट? वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली हियर कि I probably in 2011 or something, I was traveling to Windsor and I was talking to one of the Mataji, and she told me that, you know, on so and so reason, I get a lot of faith into this specific demigods. And I said, so what is exactly the reason? कि बोले उसकी वजह से मेरी बहन की शादी तय हो गई। So जिस विश्वास का आधार जो है, जिस भक्ति का आधार जो है, वह किसी संसार की चीज के ऊपर टिका है, वो कितने दिन तक टिकेगा, राइट? So if you worship Krishna, or if you devote your devotion or your love to the Supreme Person of Godhead, that is based on some sort of materialistic या संसारिक चीज, is not going to sustain longer. वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि वो संसार के ऊपर टिका हुआ है। जैसे आपकी नीड्स चेंज होगी, जैसे आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, दोज आस्था इज गोना चेंज। लेकिन विश्वास का आधार अगर गुरुजन या भक्तजन का संस्कार हो, राइट, तो वो हमेशा लाइफ और आने वाले आपके जीवन तक रहेगा। क्योंकि वो कैसे मिला है आपको वो संस्कार? वो गुरुजन, वो भक्तजन, उन्होंने जो अपने जीवन की पूंजी जो अर्जित की है, जिसे हम विश्वास कहते हैं, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, वो उस पूंजी में से आपको कुछ सिक्के आपकी झोली में डाल देंगे। इसलिए जब आप उसे अर्जित करेंगे तो वो जो आपका संस्कार है वो कभी फेंट नहीं होगा, इन द सेंस वो दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि उसका बेस जो है वो किसका विश्वास है? उस गुरुजन का या उस भक्तजन का जो उसने अर्जित किया है, वो बढ़ेगा, वो शेकन नहीं होगा। जब भी यद्यपि आपका अगर जो विश्वास है वो किसी संसार रूपी चीजों के ऊपर बेस्ड है कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इसे मानूंगा, मेरा ये काम हुआ तो मैं इसे मानूंगा, सो अगर किसी संसारी विनिमय के ऊपर टिका हुआ है तो विश्वास ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और कोई आएगा या और कोई इन्फ्लुएंस पर्सन आपके सामने दिखेगा, उसके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा धन है, ज्यादा लक्ष्मी है, अगर वो किसी स्पेसिफिक डेमिगॉड की वर्शिप कर रहा है तो आपको लगेगा अरे देखो इससे भजने से तो इतना काम हो रहा है, इतना इतना पैसा मिल रहा है, तो मैं अपने इसको छोड़ता हूँ, मैं उसकी दिशा में चलता हूँ। And that is what exactly happening in the society. The people who has more wealth or more power, if they worship some of the demigods or some of the deities, the people is going to follow that. क्योंकि उसको लगता है कि अगर इसके पास इतना कुछ आया है, by worshipping this, then I should follow the same path. तो उनका जो विश्वास है, it is not based on the devotion or not based on the sanskar which has been injected by the Guru Parampara or Guru या भक्त. Their sanskar is based on someone else's motivation or some desire of the materialistic way, right? तो इस संसार में मनुष्य का सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, वो फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। You will get benefited for the fruitive activities very quick because that is come from this world only. Moving to the next one. 4.13. चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ताराम अपि माम विधि अकर्ताराम अव्ययाम। कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं।
ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है श्लोक, राइट? वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स कि चतुर्वर्णमय सिस्टम, भगवान ने आपके गुण और कर्म के हिसाब से सोसाइटी के 4 डिवीजन किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और भगवान कह रहे उसके आगे कि मैं इसका रचयिता हूँ, मैंने इसका सर्जन किया है, लेकिन किंतु यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। आई एम नॉट बाउंडेड टू दिस वन। सो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है कि जस्ट टू सपोर्ट दिस, बहुत सारे लोग हमें ये करते हैं कि इन योर सोसाइटी इन इंडिया देयर आर 4 काइंड ऑफ वर्णा वेयर देयर इज यू हैव दिस इज डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द बर्थ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम का जो इस चैप्टर नंबर 7 जहाँ पे नारद जी, देवर्षि नारद प्रहलाद महाराज को शिक्षा देते हैं, उस समय क्या कहते हैं कि यस्य यल्लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभि वज्जकम यदन्यत्रापि दुष्येत तते नेव विनिदर्शिते, कि if one knows the symptom of being a brahmana, kshatriya, vaishya or shudra as described above, even if he has appeared in the different class, देवर्षि नारद बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं कि अगर किसी के पास सिम्टम्स है ब्राह्मण जैसे, क्षत्रिय जैसे, वैश्य जैसे, शूद्र जैसे, अगर वो कहीं और किसी डिफरेंट क्लास में उसका जन्म हुआ है, फिर भी ही शुड बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। उसको अपने गुणों के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, right? Here it is clearly stated by Devarshi Narad that one should not be accused as Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra according to the birth, accepted according to the birth. If one was born in Brahmana family, has to be acquired the Brahmanical qualification, then only he will be accepted. Otherwise, he should be considered as Brahman Bandhu. एक एग्जांपल देता हूँ ब्राह्मण बंधु का, जो था अश्वस्थामा. अश्वस्थामा was wearing a white clothes and he was known as a Brahman Bandhu. He was called as Brahman Bandhu because he was not following the Brahmanical culture of his father, and that's the reason उसे ब्राह्मण बंधु कहा जाता था. Though he born from the Brahman family, but he was not following the Brahman family. So in Mahabharat उनको संबोधित किया जाता था ब्राह्मण बंधु के हिसाब से कि yes, you born at the Brahman house, at the Brahman family, but आप ब्राह्मणत्व को follow नहीं कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण बंधु है. And that is what it should be. Right now we say that many of the every Brahman family's kid is called as Brahmana, but they are not technically Brahmana. They are Brahmana Bandhu, right? The Mitra of Brahmana, but they are not Brahmana. 4.14 Nama karmani limpati namo karma phale spruha iti mam yo bijanati कर्म भीर नास बध्यते, कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्मफल की कामना करता हूँ. जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्म के पाश में नहीं बनता, कि मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता. प्रभु हर कर्म से अलुप्त है, नहीं मैं कर्मफल की कामना करता हूँ. ही डोंट नीड टू, राइट? तो जो मेरे इस संबंध में इस सत्य को जानता है वही कर्म के पाश में नहीं पड़ता. Now, to understand this, आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया कि मैं किसी कर्मफल का मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ, राइट? सो टू अंडरस्टैंड दिस आई हैव गिवन वेरी स्मॉल एग्जांपल. सो जैसे रेन्स है, राइट? Rains are responsible for different type of vegetables that appear on the earth. Is a responsible, but rain is not only the responsible for the vegetable, though it is indirectly the main responsible. तो जैसे वैदिक स्मृति कंफर्म करती है कि in the material creation the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature by which the cosmic manifestation is made visible. इसको समझने के लिए हम एक होटल का एग्जांपल लेते हैं. एवरी वन ऑफ यू हैव बीन चेक्ड इन इनटू द होटल, राइट? अगर आप किसी होटल में जाते हैं टूरिस्ट प्लेस के अंदर, so there is a hotel which is called the premises, जिसके अंदर आप रहोगे, and there is a immediate hotel staff. मैनेजर रहेगा, हाउसकीपिंग रहेंगे, शेफ रहेंगे, and all these things, right? And there is a hotel owner who is basically own the hotel. So technically आप जो अंदर रह रहे हो, it is because of the facility given by the ownership, right?
बट उसके अंदर जो स्टाफ है दे आर बेसिकली मैनेजिंग इट। तो अगर आपको कोई भी नीड है, सपोज योर रूम इज नॉट बीन मेड और यू नीड सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, आपको कोई अपग्रेड चाहिए, तो आप होटल ओनर से डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं आएंगे, आप वहां के मैनेजर से बात करेंगे या डेस्क क्लर्क से बोलेंगे, अरे कैन आई गिव एन अपग्रेड, यू नो, सो एंड सो रीजन, एंड शी विल इमीडिएटली गिव इट टू यू, राइट। सिमिलरली जब कोई जीव इस संसार के अंदर आता है तो उसको अगर कुछ छोटी मोटी चीजें चाहिए, दे कैन बी गेट, और उनको मिल सकती है किससे? डेमीगॉड से, हु इज हैंडलिंग द होटल, हु इज हैंडलिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। सो इमीडिएट आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे इफ यू वर्शिप द डेमीगॉड्स, राइट। आपको इमीडिएट, जैसे आपके रिलेशन अच्छा है किसी होटल के स्टाफ से, आपको फटाफट काम आपका ठीक से हो जाएगा, राइट। यू डोंट नीड टू बॉदर एवरी टाइम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, right? The created being are of many varieties, such as demigods, human beings, lower animal. All of them are subject to the reaction of their past good and bad activities. इस होटल के अंदर जितने भी लोग हैं, दे आर बाउंड टू देयर एक्शंस। आप इस संसार में हो तो आपके जितने भी कर्म है वो आपको रिएक्शंस देंगे, बट टेक्निकली द सुप्रीम पर्सनालिटी इज above all of these things. He is not bound to any of the karmic reactions, right? The Lord only gives them the proper facility. वो आपको एक facility मुहैया कराता है for such activity through the regulation of modes of nature. आपको इस संसार में रख दिया, आपको एक facility दे दी to cleanse yourself, to get migrate from one mode to another, to gradually uplift yourself from one state to another state. वो सब सिस्टम भगवान ने बना के रख दी, आपको इस संसार में रख दिया, आप भगवान ने कर्मा का लॉ वहां पे फिट कर दिया, एवरीथिंग ही हैज सेट इट अप, बट ही इज नॉट technically bound to this one. He's above than this because he is the creator of this thing, right? The Lord never partial to any living entities. वो किसी के साथ partiality नहीं करते. The living entity is responsible for his own act. आप जो भी कर्म करते हो आप उसके खुद responsibility है. The Lord only gives him facility. उसने आपको इस material world की facility बना के दे दी है, right? That's what it is. The person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in the bhakti, and thus he never subjected to the law of karma. सिर्फ आपने इस पूरे सिस्टम को एक बार समझ लिया, how the system works, what the position of the Lord, what is your position, what the position of the different demigods, how the handling is been done, how the reactions and action has been taken place. All these things if you understand, then you are experienced man into the bhakti. आपको भक्ति के मायने समझ में आ गए, and because of that you are not subjected to the never subject to the law of karma. आप फिर उस कर्मा के पास से बच जाओगे, because you will act in such a way. आप उस तरीके से हैंडलिंग करोगे, you will act in such a way that yes, you won't be bound to this karmic reactions, क्योंकि आपको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, whom should I talk, whom should I not, what is my position, what is their position, what is the position of the supreme personality of Godhead. So every dealings जो रहेगा वो आपका बहुत फाइन ट्यून रहेगा, बड़ा क्लींस रहेगा, एकदम सटीक रहेगा, and that's the reason you are not bound to the law of karma. Otherwise normal people is they don't know what to do, so that's the reason they bound to the law of karma. Is there any question in this one? No? Okay. 1450. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मे पूर्वे रूपी मुमुक्षिमि कुरु कर्मेव तस्मातवम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि इस पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान को अर्जुन को सीधा एक सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट दे रहे कि everyone has followed their execution or the mode of execution of the way of execution by understanding my divya prakriti and this entire system, so you should also follow on the footstep of them, and then you will be successful. So there are two classes of men, right? Some of them are full of polluted material things within their heart, and some of them are materially free. आपको दो प्रकार के इंसानी संसार में मिलेंगे, एक के पास बहुत ज्यादा वासना है, to satisfy it in different ways in their heart, and someone is already materially free. They are already taken care of those vasana, they are out of this, they are uplifted themselves. So bhakti जो है is equally benefited for both of the person.
दोनों टाइप के लोगों के लिए भक्ति इज बेनिफिटेड। कैसे? कि जो जिनके हृदय में राइट बहुत सारी वासनाएं है, राइट, they can take the bhakti for a gradual cleansing process. वो अपने उस वासनाओं की क्लींजिंग के लिए they should take a regulative principle of devotional service. उनको भक्ति के जो नियम है, जो पद चिन्ह पे है, उस पे चल के they can cleanse their heart. Now the point is, what is the meaning of regulative principle of devotional service? We'll talk on the next slide. And those who are already cleansed, जो already भक्त हैं, जो already या तो इस पथ पे चल रहे हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस पे, या जो इसके ऊपर भी उठ चुके हैं, दे ऑल्सो कंटिन्यू द डूइंग द भक्ति इन अ सच ए वे दैट दे विल गाइड द अदर, राइट? सो अदर में फॉलो द फुटस्टेप। आप अपना खुद का एग्जाम्पल ऐसे सेट कीजिए दैट पीपल विल फॉलो इट, राइट? many times we become a devotee, we feel that, oh, we are very high grade people, we are so advanced, so we don't talk to the people who is materialistic, very much attached. No, our job is to with a compassion, हमें उनकी तरफ दया की दृष्टि है, प्रेम की दृष्टि से उनकी तरफ देखना चाहिए. We try to help them in such a way that slowly they will come onto this path and their life becomes successful, right? So what is the regulative principle of devotional service? Regulative principle of devotional service is, as per Srimad Bhagavatam, the regulative principle are called vidhi bhakti. देखिए दो प्रकार की भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति एंड वैधि भक्ति. So that can be practiced by the neophyte with his present sense. जो इंसान अभी कहीं पे नहीं है, जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है, या who just want to start on the path of devotion by inspired by some of the devotee, या उनको कहीं ज्ञान हुआ, या कहीं पे उनको ग्लानि हुई, कहीं पे पश्चाताप हुआ कि भैया जीवन मेरा बहुत सारा निकल चुका है, अभी तक मैं भागता रहा किस चीज के लिए? इसी जर जोर और जमीन के लिए. नाउ आई शुड थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई शुड गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो दे आर स्टार्टिंग द लाइफ ऑफ डिवोशन, एंड दैट what is the main thing? Hearing and chanting of the glories of the Lord, right? As such, hearing and chanting of the glories of the Lord can made possible in the association of devotees. So Lord Chaitanya Mahaprabhu जो कह रहे हैं, वो 5 options दे रहे हैं, अर्थात 5 what you call, he's giving 5 points to regulative principle of devotional service. क्या है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि association with the devotees, right? Hearing, आप भक्तों के साथ मिले, भक्ति वृक्ष कीजिए, सत्संग कीजिए, you meet out and all these things, and then discuss about the Lord, their pastime, their knowledge and everything. That is the first thing, is association of the devotees. Second is chanting the glories of the Lord. When you get time, do kirtan. When you get time, do chanting. Chanting can cleanse your heart, right? Hearing Srimad Bhagavatam from the pure devotees. Try to listen Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the epitome of devotion. It has so much of knowledge for every field of the life. Residing in holy place, connected with the Lord. आप भगवान के किसी धाम में रहिए to connect with the Lord. If this is not possible, you make your house is one of the devotional place, right? Worshipping the deities of the Lord with devotion. आप भगवान के विग्रह की सेवा कीजिए, जो आपके घर पे विग्रह है. देखिए विग्रह घर पे लाने से बहुत फायदे होते हैं. पहले आप भगवान की पूजा करते हैं, जब विग्रह घर पे आ जाता है, जब आपका उससे संबंध बनता है, तब वही पूजा सेवा में परिवर्तित होती है, तब आप भगवान की सेवा करते हैं. इट इज लाइक वन ऑफ योर फैमिली मेंबर. उनको टाइम पे खिलाना, टाइम पे नहलाना, टाइम पे उठाना, टाइम पे सुलाना. दैट वे इन योर चित्त भगवान धीरे धीरे इज गोना टेक ओवर, और जितनी भी गंध है वो बाहर निकलती जाएगी, और भगवान से कनेक्टेड जो सब सब्जेक्ट है इज गोना कम इनटू योर हार्ट. सो द क्लींजिंग इज गोना स्टार्ट. चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा चेतो दर्पण मार्जनम, Cheto Darpana Marjanam is happen. Cheto Darpana Marjanam is you are cleansing your chitta, you are cleansing your heart, जिसके अंदर जन्मों जन्मों से इतनी वासनाएं और इतना मैल भरा हुआ है, तो it is not possible to cleanse without with the normal kind of yoga and all this practice. For that you need the supreme cleansing agent, and that is the Harinam और भगवान आपको चाहिए. That is what the Cheto Darpana Marjanam is. Next one is foolish person or neophyte in Krishna consciousness often want to retire from the activities. Arjuna desire to retire from the activities on the battlefield of not approved by the Lord. तो यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि
प्राचीन काल में तुम रिटायर होने की बात कर रहे हो अर्जुन, यू वांट टू लीव एवरीथिंग एंड गो टू द फॉरेस्ट, बट नो, इट इज नॉट आई अप्रूव्ड। जैसे विवस्वान ने किया, जब प्राचीन काल में किसने पहली बार सुनाई? भगवान ने, विवस्वान ने। सो जैसे सूर्य देव को मैंने सुनाया एंड ही फॉलो दिस प्रॉपरली आफ्टर हैविंग द प्रॉपर गाइड। और भगवान ने यहाँ पे विवस्वान का नाम क्यों लिया, सूर्य देव का नाम क्यों लिया? क्योंकि सूर्य इज द एग्जाम्पल ऑफ धर्म। सूर्य से बड़ा धर्म कोई अदा नहीं करता। आपने कभी सुना नहीं होगा कि सूर्य नेवर राइज। सूर्य अपने समय पे हर दिन उगते ही उगते हैं। ही इज वेरी मच कमिटेड टू हिज वर्क, राइट? Surya is the topmost devotee of the Lord. He execute his dharma without any glitch. आपने कभी सुना नहीं होगा कि अच्छा परसों ना सूरज नहीं आया था, हाँ, और नरसों यहाँ पे सूरज नहीं उगा था। नहीं, पूरे संसार में सूरज बिना चुके हुए हर वक्त हर दिन अपनी ड्यूटी बजाता ही बजाता है। And that is what Krishna tells Arjuna, that Surya never forget his dharma. Similarly, you should not need to go to the forest to take renunciation. You execute your devotion in such a way that your dharma will never compromise. Therefore, he recommend to act of the sun god, who learned this art from the Lord some millions of years ago. सन गॉड ने, सूर्य देव ने यही आर्ट भगवान से सीखी थी, और यही चीज भगवान कर रहे कि पहले जो हो चुके हैं कौन? तुम्हें चाहिए कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्मा ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया है। जैसे सूर्यदेव ने मेरी प्रकृति को जान के ही कर्म किया है, आपको उसी के रास्ते पे आगे बढ़ना है। यू शुड एग्जीक्यूट योर टास्क इन सच वे, राइट? एनी क्वेश्चंस इन सो फार? This is too much philosophical actually, but we have to cover, so we have to cover, and I hope you take it. I mean, like, it will be little heavy, but that's fine. Take it as it is and it will be okay. Any questions in this one? Everyone's camera is off, so I don't know whether you are there or not, but I hope you're listening. Okay, Yeah, we are listening. perfect. प्रभु जी इधर ही है हम लोग. Nice, nice, nice. You can leave your camera on actually. It's not gonna harm anything. You all are beautiful and handsome personalities. Okay. So moving to the next one. That is the question which has been asked. So I was referring some of the bhajana, and the lyrics describe in the way where lyricists mention कि Krishna, you are so merciful. आप बहुत दयालु है, आप बहुत सारे आपने दानवों को तारा है. You have to deliver me. आपको मुझे भी डिलीवर करना ही पड़ेगा, right? And so. So उनका क्वेश्चन था कि हम लोग इतने स्मार्ट है कि we tell all these things to Krishna. So why can't we just worship Krishna at the end? भगवान की भक्ति एंड में कर लो मरने के समय पे, right? When we get old and all this thing, and then we can easily get out of it. So we can enjoy our life the way we want it, the materialistic way or sense gratification or whatever it is you can put it on, and then at the end we'll worship the life, we worship him, and then we'll get out of it. Okay, then we'll tell Krishna that I am your devotee, so you have to take care of me. So till what sense this is true? So then there are few questions in this one. I put it this way. So पहला, किसका लिखा हुआ या कहा हुआ सुनना चाहिए? ये मैंने कहा है कि आपने जो मेरे से शेयर किया भजन, that has been written by some of the local lyricists who don't know what is the ABCD of devotion, right? So पहले, किसका लिखा हुआ या कहा हुआ सुनना चाहिए? दूसरा, क्या अंत में भगवान की भक्ति हो सकती है? और तीसरा, क्या भगवान से कपट हो सकता है? और चौथा, क्या अधम को प्रभु नहीं तारते? जैसे उंगली मार को तारा, जगाए मधाई को तारा, तो प्रभु अधम को तारते भी है. सो दिस 4 पॉइंट वी कैन डिस्कस. सो पहला जो था, किसका लिखा हुआ या कहा हुआ सुनना चाहिए, कि देखिए किसी भी टॉम डिक हैरी का लिखा हुआ पहले तो ना अपने भक्ति या अपने घर के अंदर लेके आइए. वो जो लोकल बुक्स रहती हैं जो 10-10 रुपए में छपी रहती है, या किसी के मरण पे या किसी के उस पे किसी ना किसी भजन जिसने लिखा हुआ है, वी डोंट नो हु हैज रिटन दैट. नेवर टेक दैट इन योर अल्टर, नेवर टेक इन योर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी. क्योंकि जब कोई भक्त लिखता है या एक बाजारू गवैया लिखता है, उसमें फर्क रहता है. क्योंकि भक्त जो रहता है, उसने उस कविता के अंदर या उस भगवान की स्तुति के अंदर
अपना भाव जो है वो निर्धारित किया हुआ आता है। उसको सुनने से या उसको गाने से या उसको रिपीट करने से डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड टू द सेम फ्रीक्वेंसी और द सेम भाव जो आपको फायदा कराएगा, राइट। जैसे कुछ दिन पहले हमने जब शिवजी की बात की थी, तब शिवजी ने जब कृपा कटाक्ष स्तोत्र को लिखा राधा रानी के लिए, तब उसके एक एक वर्ड का चयन देखिए। जब भगवान शिव खुद लिख रहे हैं, वो ईश्वर है, जब ईश्वर खुद राधा रानी के बारे में लिख रहे हैं, उसका एक एक वर्ड का चयन देखिए। वो जितनी बार आप उसे गाओगे आपको उतना ही रियलाइजेशन होगा। जैसे गोपी गीत हमने गाया, गोपी गीत में गोपियों के एक एक शब्दों का चयन देखिए, यू विल बी अमेज्ड। आपको गाना है सूरदास जी के लिए गाइए, आपको गाना है संत गोस्वामी तुलसीदास जी के भजन है, आपको गाना है, बहुत सारे हैं, नरसिंह मेहता के भजन है। यू गेट दोज इनटू योर अल्टर और इनटू योर डिवोशनल लाइफ rather than getting something which is available in the पान वाले की दुकान या किसी शॉप पे मिल रहा है, किसी ने गाया हुआ है। डोंट टेक देयर वॉइस एज वेल इनटू योर हाउस और नेदर देयर writing in their house because they are not gonna give you a right information। वो उसको जो ठीक लगा उसने वैसे लिखा, तो discard that point। first filtration should be that point। दूसरी फर्क क्या है, जैसे भक्त वर्सेस बाजारू गवैया में, अमनिया वर्सेस रेस्टोरेंट का भोजन। आप भगवान के मंदिर में जब जाते हो या भगवान का आपके घर पे विग्रह है, तो आप भगवान को क्या बाहर रेस्टोरेंट से खाना ला के ऑफर करते हो? नहीं, आप भगवान को शुद्ध होके खाना बना के भगवान को खिलाते हो। तो वो डिफरेंस है, राइट। जो बाहर का गवैया है, जो बाहर का लिरिसिस्ट है, जो भक्त नहीं है, उसका जो परोसा हुआ जो भजन है या कीर्तन है, दैट इज सिमिलर टू द रेस्टोरेंट फूड। वो हर एक के लिए उसने गाया है, उसका गला हर एक के लिए ऑफर। उसने वासना वाली चीजें भी गाई है, उसने किसी लड़की को रिझाने के लिए गाने भी गाए हैं, उसने किसी निम्न तर की चीजें भी गाई हैं। तो उसका जो गला है इज नॉट बिन पवित्र। तो उसका गाया हुआ है, उसका लिखा हुआ डजंट हैव एनी वैल्यू, दैट इज नॉट recommended to be offered to the feet of Krishna। So get something or read something or hear something or listen something which has been written या sung by the devotees, right। दूसरी बात, क्या अंत में भगवान की भक्ति हो सकती है? नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं कि उसका अंत कब है, राइट। वी डोंट नो व्हेन वी गोना डाई। सो अगर मैं आज कहूं कि नहीं अभी मैं 50 साल का होऊंगा या 60 साल का होऊंगा, एट दैट टाइम आई विल स्टार्ट लिसनिंग और डूइंग माय डिवोशन, बट डू आई रियली नो दैट विल आई लास्ट टिल 60 years? No, so we don't know when we're gonna die। so bhakti should be done the moment we know that there should be something called bhakti। आपको उसी समय उस पर कार्यरत होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण रामचरितमानस में बाली कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत में राम मुख आवत नाही। कि जन्म जन्म जो मुनि जतन करते हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द नेम ऑफ द राम एट द टाइम ऑफ एंड। तो जब जन्म जन्म के जतन के बाद अगर राम का नाम मृत्यु के समय पे आना इतना डिफिकल्ट है, तो आप समझ लीजिए कि आपने जीवन भर कुछ भी नहीं किया, भक्ति का एबीसीडी भी नहीं किया हुआ है, एंड यू विल एक्सपेक्ट दैट एट द एंड you will able to chant the name of the Lord। it is possible? No, it is not possible। so अंत में भगवान की भक्ति हो सकती है? आंसर है नहीं। so क्या भगवान से कपट हो सकता है? जैसा आपने कहा कि वी ह्यूमंस आर वेरी स्मार्ट, राइट। इंसान बहुत बुद्धिमान है, तो भगवान को छल सकता है एंड में ये सब कह के कि मैं आपका हूं तो आपको मुझे तारना पड़ेगा एंड ऑल दिस थिंग, वरना आपके लोग हंसी उड़ाएंगे। तो क्या भगवान से कपट हो सकता है? तो भगवान, ये संवाद है एक्चुअली जब विभीषण भगवान की शरणागति ग्रहण करने आते हैं, राइट। तो उस समय भगवान ये चीज कहते हैं किसे? सुग्रीव से, कि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि मुझे निर्मल मन हमेशा पसंद आता है, कपट और छल छिद्र मुझे कभी भी रुचाता नहीं है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो पहली चीज भगवान ने क्या कही? कपट छल ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होते, राइट। और दूसरी बात की भगवान जो है हर एक इंसान के हृदय में बैठे होते हैं। गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति। कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, आप किससे कपट करेंगे? उनसे। वो आपको हमेशा देख रहा है,
आपका हर सेकंड का हर एक्शन जो है भगवान आपको देख रहा है, सो यू कैन नॉट चीट हिम, राइट। सो चौथा तो फिर ये था कि क्या अधम को प्रभु नहीं तारते, राइट। अजामिल को तारा, उंगली मार को तारा, जगाई मधाई को तारा, तो फिर अधम को तो भगवान तारते हैं। सो वॉट एवर आई डू रॉन्ग थिंग्स देन आई ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो क्या अधम को भगवान तारते हैं? तो हाँ, भगवान अधम को तारते हैं। लेकिन इन सबका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो उन्होंने जब रियलाइज किया that they were doing wrong, the moment they want to change, then after they never went back, right? तो जिन्होंने भगवान या गुरु की शरण ले ली है एक बार, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उस रास्ते पर वो वापस कभी नहीं गए, राइट। मेरे एक मित्र थे कैलिफोर्निया में, मेरा whom I used to live with, जिसका नाम रामू प्रभु था, and I was very amazed with his conviction, क्योंकि he told me his life, how he progressed from one step to another step. He is in Shri संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय में वो दीक्षित हैं। वो पहले meat eating, intoxication, gambling, he was involved in everything. He went and listened the lecture of Chinnajiyar Swami, who is right now heading the Sri Sampradaya. He went and listened his lecture once. He went and listened his lecture twice, back to back, Friday and Saturday. The Saturday, then he, Chinnajiyar Swami explained about the Sharanagati and the benefit of Sharanagati. The moment he realized that so far whatever he was doing was completely wrong, he went home on Saturday, sorry, Friday and Saturday it was, he went home on Saturday, he take out everything in his refrigerator. उसके पास मीट था, बियर था and everything. He take out everything, throw in a garbage. Not only that, जो उसके पास pots थे, वो pots भी उन्होंने बाहर garbage can के पास रख दिए. He washed his out completely. उसने अपना घर पूरी तरह से clean कर दिया. And Sunday morning 10 o'clock there was a meeting with the devotee by Chinnajiyar Swami. He went and told Chinnajiyar Swami the same thing, that I was like this and I want to surrender myself to Narayana. Chinnajiyar Swami immediately gave him initiation. And then after, if you see his life, it's completely upside down. This person is doing Nirjala Ekadashi every Ekadashi. He up for the night till 1 o'clock in the morning. He's doing Ramayana Parayan every Ekadashi. Pura Ramayana padhte hai wo. He sleep on the floor, wake up morning at 4 a.m. making the bhoga for Lord Narayan. He offer to Lord Narayan. He makes sure one Vaishnava he get on that day. He offer to one of the Vaishnava, he make him feed, and then he take the prasadam. So that kind of people, भगवान क्या कहते हैं? ऐसे शरणागत के वत्सल है भगवान। ही शरणागत वत्सल, क्योंकि वो तरफ की शरणागति प्रभु स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसका मन जो है निर्मल मन हो गया, छल कपट उसके अंदर है नहीं। ही सरेंडर फॉर दैट पर्सन, भगवान बिकेम अ शरणागत वत्सल, उसको प्रभु उधार लेते हैं। अगर अधम कोई है, जगाई मधाई का नाम लिया, राइट, उंगली मार का नाम लिया, अजामिल का नाम, अधम है वो, लेकिन द मोमेंट दे सरेंडर देमसेल्फ दे नेवर वेंट बैक। ऐसे अधम का उजागर करते, इसलिए उसे अधम उजागर कहा गया है, राइट। कुछ पंक्तियां मैंने रामचरितमानस से यहाँ पे ली है। दिस इज द डिस्कशन बिटवीन विभीषण एंड लॉर्ड राम व्हेन विभीषण केम फॉर शरणागति। यहाँ पे भगवान का मूड आपको समझ में आया कि प्रभु शरणागत वत्सल है, लेकिन प्रभु को क्या अच्छा नहीं लगता। कोटि विप्र बदला गहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अध ना सही तब ही। प्रभु क्या कह रहे हैं कि जीव करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो जिसके ऊपर, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरी सम्मुख होता है, वो मेरे सामने होता है, प्रभु इतने कृपा निधि है कि त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप वो नष्ट कर देते हैं। दैट इज व्हाट द गारंटी कृष्णा इज गिविंग। बट हाँ, अगर आप भगवान को चाहते हो कि आप उसे चीट करोगे, इज नॉट पॉसिबल। कि आप पाप भी कर रहे हो, भगवान वो मैं आपका हूं, आप प्रभु नोज दैट वेदर यू आर माइन और यू आर वासनास, राइट। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोय होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। भगवान किसे कह रहे हैं? सुग्रीव को, कि ये इंसान पापी नहीं है, क्योंकि पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता।
राइट। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। अगर आप किसी से भगवान की भक्ति के बारे में बात कर रहे हो, वो भगवान की भक्ति के बारे में बात सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पिछले जन्म का पाप का बोझ इतना ज्यादा है कि ही कैन नॉट लिसन द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, नेदर ही कैन टॉक अबाउट द लॉर्ड, नेदर ही कैन हियर अबाउट द लॉर्ड, क्योंकि पिछले पाप का बोझ बहुत ज्यादा है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि ये जो आया हुआ शरणागत है रावण का भाई, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, अगर उसका हृदय जो खराब होता, कोई हीन भावना के साथ मेरे सामने आया होता, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता, ही वुड नॉट एबल टू कम इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। उस समय विभीषण क्या कहते हैं फिर भगवान से जब मिलते हैं कि नाथ मैं कौन हूं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्कही तम पर नेहा। बहुत सही अपना दीनता का परिचय दे रहे हैं विभीषण जी। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं, दैट इज व्हाट माय फर्स्ट क्वालिफिकेशन। मैं दशानंद का भाई हूं। दूसरा, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, दैट इज माय सेकंड क्वालिफिकेशन। तीसरा, मेरी तामसी शरीर है, मेरा शरीर जो है वो तमोगुण से भरा पड़ा हुआ, क्योंकि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं। और चौथा वो क्या कह रहे हैं कि स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। ये विभीषण की दीनता है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। और चौथा खुद का उदाहरण देते हैं, कैसा कि जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, जैसे उल्लू को अंधकार पर स्नेह होता है, वैसे ही मुझे पाप पर स्नेह है। तो ये दीनता है विभीषण जी की। विभीषण जी कहते हैं कि ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं एक तो रावण का भाई हूँ, दूसरा मैं राक्षस कुल में जन्म हुआ हूं, तीसरा मेरा तामसमय शरीर है, और चौथा पाप मुझे प्रिय लगता है। तो प्रभु मेरी इतनी 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 क्वालिफिकेशन है, एम आई क्वालिफाइड टू टेक योर शेल्टर? तब भगवान क्या कहते हैं उसे कि खल मंडली बसहु दिन राती, सखा, भगवान उसे सखा कह के कहते हैं, सखा धर्म निबहई के भांति, मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अतिथि। भगवान उसे पैसिफाई करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दिन रात तुम दुष्टों की मंडली में बसते हो विभीषण, ऐसी दशा में हे सखे, सखा कह के बुलाते, हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा, यानी तुम कैसे अपने आप को बचा के रखते, क्योंकि तुम दुष्टों की संगली में बैठते हो। मैं तुम्हारी सब रीति को जानता हूं, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर हार्ट, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, राइट। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, बिकॉज नाउ यू आर टेकन अ फर्स्ट स्टेप टू गेट द शेल्टर, व्यवसायत्मिक बुद्धि, तूने भगवान की शेल्टर लेने का ठान लिया, तो तुम बहुत ही नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुझाती, तुम्हें अनीति सुझाएगी नहीं। तो भगवान यहाँ पे विभीषण को पैसिफाई करते हैं कि भैया तुम दिन रात तुम्हारा एसोसिएशन जो है वो खराब है, इसकी वजह से तुम चाहते हुए भी अपना धर्म निभा नहीं सकते, सो डोंट वरी अबाउट इट। तब विभीषण रिटर्न में भगवान को कहते हैं लास्ट श्लोक में कि बरुमल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराई, जो तुम्हु किन्ही जानि जन दाया। कि हे नाथ, मुझे नरक में रहना अच्छा लगता है, परंतु विधाता कभी मुझे दुष्ट का संग ना प्रदान करे। भगवान यहाँ पे विभीषण यहाँ पे सत्संग की बातें बता रहे हैं कि प्रभु मुझे नरक में रख देना, लेकिन कभी विधाता मुझे दुष्ट का संग न प्रदान करे, राइट। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो भगवान अधम पे कृपा करते हैं, बट उनका हार्ट वैसा होना चाहिए, राइट। निर्मल मन जन सो मही पावा, right? So coming back to your question, yes, so this is all answered. So भगवान को cheat नहीं कर सकते, yes, he will deliver you, but the mood should be in that way, the शरणागति mood should be there at the विभीषण was carrying. अगर जैसा mood नहीं रहेगा, आपको लगेगा आप भगवान को cheat कर सकते हैं, but sorry, you cannot cheat him, he knows everything. जैसे विभीषण को कहा, I know everything, तुम कैसे जीते हो मुझे सब पता है, don't worry about it. But he want to change, he has the heart has that mood of surrender, जैसे मैंने रामू प्रभु का example दिया, right? So then only he will deliver you. If you think that you can cheat him,
नो यू कैन नॉट चीट हिम। एंड आपको भक्ति अंत में कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू गोना डाई, व्हेन इज योर अंत इज। अभी आज ही न्यूज़पेपर में चल रहा था ना कि देयर इज अ 40 years old very good actor, he died with the cardiac arrest, he was very healthy but he died. So you never know when we're going to die, so there is no ant samay, जो भी टाइम है वो अभी है। अगर अभी भक्ति नहीं करोगे, you never know when you're going to leave from this planet, right? So this is what about it. Any question or comments? प्रभु जी, Yes, अ, Mataji. अ, आपने बोला कि पहले सबको ऐसा लगता है कि पहले खुशी जो अच्छा लगता है वो कर ले, बाद में भगवान का नाम ले। पर पर खुशी ही भगवान के नाम से मिलती हो तो So that's good, right? What is wrong in that? That's what it should be, right? तो फिर तब वो करते हैं, तब माया आती है नहीं, खुशी एग्जाम लेने। भगवान, खुशी भगवान जैसे के नाम से मैं समझा नहीं। हाँ, जैसे कि आपने अभी बोला स्टार्टिंग में जब आपने आंसर देना स्टार्ट किया ना, तब आपने ऐसा बोला कि जैसे कि अब बाद में अभी चीटिंग कर लेते हैं, हाँ, कि अभी जो करना है कर ले, और जो जिसमें हैप्पीनेस मिलती है, फिर बाद में भगवान का नाम ले लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा एंड में। पर एंड कब है पता नहीं। अब मुझे जस्ट गिविंग दैट कि मुझे अभी ऐसा है कि भक्ति करने में ही हैप्पीनेस मिलती है, अंदर से जो हैप्पीनेस है वो रियलाइज होती है जब भक्ति करती हूँ। पर तभी माया का आवरण, बच्चों को देखो ये काम बाकी है, वो नहीं आना चाहिए, तो तब ज्यादा आता है। जब भी यानी मैंने ये रियलाइजेशन किया कि जब भी मैं 100% देना चाहती हूँ ना, तभी यानी कोई ना कोई ऐसे कुछ आता ही है मेरे साथ। देखिए माता जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने। So this is the basic problem even with the not I would say advanced devotee, even probably the people who is practicing the devotional service, right? I would put it like that. The reason is उनको लगता है कि भगवान जो अल्टर के अंदर बैठे हैं उनकी सेवा ही भक्ति है, या उनके लिए जो क्या भक्ति है। That is not what Gita is telling you, or that is not what Krishna is telling you. What is bhakti? Bhakti is basically you transform your activity in such a way that it become the devotion. अर्जुन को क्या भगवान ने क्या बोला? अगर देखा जाए तो अर्जुन भगवान के साथ एसोसिएशन में था, राइट? सो ही वाज डूइंग भक्ति ऑफ भगवान। भगवान उसे कह रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो। अब टेक्निकली देखा जाए तो आपके एग्जांपल से वो युद्ध करना क्या हुआ? वो एक नॉर्मल कर्म हुआ, राइट? जैसे आपने कहा कि बच्चे बच्चे का काम आ गया या कुछ और आ गया, आपके जो कार्य है, तो भगवान उसको कह रहे हैं तुम्हारा वही वही दैट इज व्हाट द डिवोशन इज, दैट यू आर फाइटिंग फॉर मी। सो आपके पास जो आपने बोला कि डिस्ट्रैक्शन कम इन द टर्म्स ऑफ किड्स, नहीं, इट्स नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। जो आपकी सेवा है किड्स के लिए, you think that you are serving for Krishna because kids is also given by Krishna to you at your house, so you can deliver them, you can give them right things. अगर किड भूखा है और आप भगवान की आरती कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि अरे मेरे को आरती, मेरी भक्ति हो रही है अभी, तो आई शुड नॉट अटेंड द, नो, you should attend the kids first. Krishna never say that आप अपने 5 साल के बच्चे को भूखा रखो and then you come to me, or you don't attend him and come to me. No, he will never say that. बट शुद्धता भी होनी चाहिए। नहीं, कैसे नहीं, कैसे जैसे कि मैं भोग कर रही हूँ, एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। अब उसमें मेरे 10 months ओल्ड ने कुछ भी पी पॉटी की, पहले मैं उसको साफ करूंगी, फिर से नहाने जाऊंगी, फिर मैं भोग बनाऊंगी क्योंकि मुझे भगवान को अर्पण करना है। तो यानी जब भी, तो वो माया कहाँ हुई? वो तो भगवान ने आपका टेस्ट लिया। एग्जाम्पल देता हूँ संत एकनाथ का। संत एकनाथ जब किसी गांव में थे, फरगॉट, चंद्रभागा के रिवर के ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो संत एकनाथ वाज गोइंग टू हैव द दर्शन इन द मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग अ बाथ इनटू Chandrabhaga. He came out and one of the Malay spit on him. He went back again, he came out, again spit on him. That happens how many times? 108 times or something like that, right? 108 टाइम उन्होंने बात लिया, राइट? हर एक बार वो भगवान का शुक्रिया मना कर रहे थे, अरे प्रभु एक बार नहला और दिया, चलो, मैं बहुत आलस कर रहा था। जब 108 के ऊपर हो गया तब वो मलेच जो मुसलमान उनके शरण में गिर गया कि आई एम वेरी सॉरी, आई वाज बीन पेड टू डू दैट, सो यू गेट एंग्री ऑन मी, राइट? तो बोले नहीं, मैं हर बार आपको थैंक अदा कर रहा था बिकॉज
आज के दिन, आज पूर्णिमा है, आज के दिन चंद्रभागा में नहाने का बहुत पुण्य है। मैं चाहता कि मैं 101 बार नहा के भगवान की दर्शन करने के लिए जाऊं, पर मेरी ठंडी की वजह से मेरी आलस नहीं टूट रही थी, तो आपने हर बार मेरे पे थूक के मेरे पे कृपा कर दी, right? So whenever you suppose when you are doing something and your kids is calling, just attend him, because he don't have anyone than you to call for. Clean him, take a bath, that's fine, nothing wrong in that. जी Nothing wrong in that. Yeah. समझिए कि भगवान ने एक बार मेरी पेशेंस की तपस्या कर दी इस बहाने। कोई नहीं, बच्चे ने बुलाया ना, वो किसी और बुलाएगा, उसके पास और कोई नहीं है भी नहीं। प्रभु जी, यानी कभी कभार कैसा होता है कि दिन में ही 5-6 बार सिर्फ नहाना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं, मेरे कान्हा को मैं अभी अपने ये नहीं कर सकती हूँ, नहीं, ये नहीं कर। that is very, this is what the पुष्टि संप्रदाय आचार विचार, वहां पे जब भगवान के गर्भगृह में जाया जाता है तो आपको उसे क्या कहते हैं, what is the word they using, I forgot the word. So you cannot enter without taking a bath, and actually I have also taken that practice for in my lifestyle. So I won't enter inside the Garbhagruh and touching the Thakurji without taking a bath. So या ठीक है ना, इवन कितने कोई बच, मुझे टच भी कर लेता है ना तो मैं नहाने जाती हूँ नहीं, अभी। that is what it is. So देखिए, ये बच्चा कितने दिन तक बच्चा रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब आपको पॉटी बीबी के लिए बुलाएगा 3 साल के बाद तो खत्म हो गया। समझ ले 3 साल तक आपने इतने जन्मों का नहाना बचा होगा, भगवान ने नहला दिया आप। So ओके don't worry about it. Think that is a part of the process of cleansing, inside or outside. जी प्रभु। Right? Any comments? Any questions? Jai Gopal Prabhu, thank you for joining us after a long time. Okay. Rohit Prabhu, any questions or comments? नहीं प्रभु, हम तो बस सुन रहे हैं आपकी वाणी। नहीं। ठीक है, then we'll go with the chanting, and thank you for asking such a beautiful question. Questions actually क्या करता है कि questions different direction में ले जाके उसके अंदर थोड़ा मसाला रहता है, थोड़ी मिठाई रहती है, so people get connected very nicely. So the questions is the key for running the satsang with different kind of flavors, because sometimes the knowledge is becomes so heavy that it is very tough to digest. But this question will take us to the different kind of rasa, and जैसे saliva होती है ना खाने के साथ, वैसे ये सब questions काम करते हैं. So I really thankful for the people who ask such a beautiful questions. Right. Thank you. क्वेश्चन में भी आप अगली बार आप आंसर करिएगा कि जैसे कृष्ण जी की आपने जब ये बॉडी के बारे में भी बात हो रही थी, राइट, डिफरेंस बिटवीन आवर बॉडी एंड कृष्णा's बॉडी, नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहीं पे सुना था, डिड लॉर्ड कृष्णा एवर डाई? He never died. How can he die? He has a spiritual form. He कहीं पे मैंने, हाँ प्रभु, कहाँ पे पढ़ा, यही मैं चीज इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा मैंने, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं सदगुरु का उनका कहीं कुछ मैं सुन रहा था, तो इन दैट ही हैज मेड दिस कमेंट about Lord Krishna. In fact, he made couple of comments in fact which I found very what should I say, very repulsive, offensive. One was about his relationship with Yashoda, because he said he grew much faster. I think uska kuch clarification bhi diya tha ISKCON ne, but he also talked about that Lord Krishna he also died. He was killed by unki ankle mein तीर आके लगा था and he died. That's a comment he made. We'll take this question, Prabhu, because I don't want to let go this question. Yeah. So yeah. दो चीजें, मैंने इस सवाल को जब शुरुआत किया तब मैंने क्या कहा कि whom you should listen, that should be the first filter, right? अभी Sadguru, he has a good knowledge, right? He has a very practical knowledge, but he don't have a knowledge for everything. That is the first thing. Second thing is Sadguru is atheist. He's Mayavadi. What is Mayavadi? Mayavadi's definition is, I will be the God after I die. So that is called Advaita philosophy.
that you are not separate from the God, you are God himself, right? Where the Dvait philosophy, which is Srimad Bhagavatam, we follow. What it says that we are qualitatively same to the God, but we are quantitatively different. So as I give an example, or Prabhupada give an example, that he's the gold mine and we are the gold. So quality we have the same, but quantity is different. He's the mine and we are just a particle, right? Second point, as I mentioned again, that whom you should listen and whom you should read. The person, say for example, if I don't believe in your existence, that Rohit Prabhu exists, if I have to comment on something, I will be completely disrespect, because I don't believe that you are existing, Rohit Prabhu. When I believe you are not existing, how can I say something good about you? For me, you are no one, right? You are nothing. I'm talking to the picture, or I'm talking to some of the vague thing. So that is what about Sadhguru. Sadhguru is knowledgeable person. I'm not saying that he's preaching about the vegetarianism. He is preaching about the forest. He's preaching about the river cleansing. So those are the aspects are good. But when it comes from the devotion perspective, he's not the right person to take the advice from or to listen for. And he should be also refrain himself for commenting everything what comes to him, because then he won't be able to justify, and he will be the cause of misleading many of the people. The same example he has given to you, right? Fourth point, Krishna, Rama, they all descend with the spiritual form, spiritual body, and they advent. ये फिर निकल जाते हैं. Their mortar won't remain. There is no अग्नि संस्कार. There is no body left. इसीलिए पहला एग्जाम्पल अगर वो कहता है कि ये भगवान थे, अच्छा, और इनकी समाधि यहाँ पे है, अच्छा, तो या तो ये भगवान नहीं थे या इनकी समाधि यहाँ पे नहीं. क्योंकि अगर वो भगवान थे तो they won't leave their body, they go with, जैसे श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन आता है कि when Krishna departed from this planet from Patan, which is 3 सोमनाथ पाटन से 3 किलोमीटर पे उनका place है from where he departed. Yes, he got shot into the arrow. There is a reason, because in Ramayana there is a किस्सा which you remember that बाली को भगवान ने पेड़ के पीछे से छुप के तीर मारा था. उस समय Bali has a lot of grudges and he started confronting Lord Rama by saying that why you shot me from the behind? I should deserve to be shot from front because I am the warrior. And that's time Bali got the another bhav from inside, that if I will get the chance, I will kill you from the back only, from hidden tree. So you won't deserve to be shot from the front. That is the bhav Bali has had. So Bhagwan is Bhavgrahi Janardhan. He knows everything. जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, he knows everything. तो भगवान ने अंदर जो चल रहा था उसको भी ग्रहण किया, भावग्राही है ना, right? So he said, okay, you want me to shot from the back, from the behind the trees, I will accept that when I come next time, right? And then Lord Ram explained him everything, and then Bali surrendered to Lord Ram. He says that I want to die in front of you because I won't get this chance, right? जाके नाम बल शंकर काशी देते हैं गति जीव अति अविनाशी. आज वो सामने मेरे खड़े हैं जिसका नाम लेके शंकर, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि शंकर काशी में सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, जिसके नाम से आज वो स्वयं साक्षात मेरे सामने खड़े हैं. इससे अच्छा सिचुएशन क्या होगा मेरे को इस संसार से निकलने का. सो आई वांट टू डाई राइट नाउ, प्लीज अलाउ मी टू डाई. दैट इज द लास्ट डिस्कशन बिटवीन राम एंड बाली. बट द फर्स्ट थॉट बाली हैज इट, आई वांट टू शॉट यू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री. सो बाली अपीयर्ड इन द कृष्ण लीला एज पारधी, और जरा, उसका नाम था, जरा नाम का शिकारी था. एंड देन he shot Krishna onto the feet because he want to do that. So भगवान ने उसका शॉट लिया, उसका तीर अपने पैर में लिया. Okay, this is what your desire was, I have fulfilled that desire. And भगवान ने अपने से पहले, जब बाली ने भगवान की प्रदक्षिणा की, वहीं पे बाली ने भगवान की प्रदक्षिणा की, वो पारधी ने बेसिकली उसको अपने स्वरूप, उसको what is the fourth mukti where you get the same body form? Swalokya, Sayojya, Samipya, Swarupya. Yeah, Swarupya, I think. Yeah, so Swarupya is the same form as Lord Narayan. तो उस बाली को भगवान कृष्णा ने अपने जैसा फॉर्म प्रदान किया और अपने से पहले वैकुंठ भेजा. So that Pardi left before Lord Krishna start his journey. And then what happens?
शंख चक्र गदा पद्म भगवान के चारों, ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, आप पढ़ सकते हो, द्वारिका लीला में ये सब निकले, फिर भगवान अपने धाम में पधारे. So there is no mortal remains for Lord Krishna you can ever find. You won't find mortal remain for Lord Ram. You won't find mortal remain for Narsimha Dev, Varahadev, all these things, because they descend and then they leave. Right? उनका, हाँ, आप बहुत सारे जो सेल्फ मेड गॉड मैन है या बहुत सारे जो भगवान बने हैं इस संसार में, आपको उनकी समाधि भी मिलेगी और उनके अस्थियां भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी. Because that is a material body. When the Krishna comes, when Narayan comes, when Lord Ram comes, there is no body. It's a spiritual form always. Is that answer your question? Yeah, bilkul. Even Sadhguru once said in his lecture that he never read Bhagavad Gita. So that's what I'm saying. His lecture is good for some of the practical life, but not for spiritual life. He doesn't know everything about the scriptures. I like very good description in Siksha Patri of Sahajanand Swami, where he mentioned very nice thing. विमुख जीव के बदन से कथा सुनी ना जाए. विमुख जीव, जो भगवान से विमुख है, विमुख जीव के बदन से कथा सुनी ना जाए. That is Sahajanand Swami Maharaj said in Siksha Patri. कि अगर आपको मेरे लिए प्रेम ही नहीं है या आपको मेरे लिए रिस्पेक्ट ही नहीं, आप मेरे भक्ति नहीं हो, तो उसके मुंह से कथा सुनना यानी खीर खाना जिसके अंदर छोटा सा इंजेक्शन हो, किसका, जहर का. नाक के जहर का थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल दूं अच्छी बनाई खीर के अंदर, इट इज द सेम थिंग. आपको मैं खीर तो परोसूंगा लेकिन उसके अंदर जहर रहेगा. वैसे ही दिस काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल सो कॉल, दे विल सर्व यू द कृष्ण लीला और कृष्ण कथा एंड एवरीथिंग, बट इट हैज अ पॉइजन ऑफ द एथीइज्म, इट इज अ पॉइजन ऑफ द मायावादी. तो इसलिए बहुत वी हैव टू बी केयरफुल whom you should listen. But only thing is he's a big reach, right? I mean, he's talking at United Nations. He's talking at, he's such a big follower. People who are listening to him. So when you're spreading these kind of, giving such statements and getting away with it, so that is why I thought I'd ask you. No, the question is not wrong, Prabhu. What I'm saying is this answer is, this is the problem with this kind of people. And this is the thing that, see, that is what Krishna says, that ki agar if you want to get cheated, if you have the cheating propensity, you will get the people who can give you a cheating kind of knowledge. आप बहुत सारे संसार में लोग देखते हैं, वो कहीं भी जाके सर टिकाते हैं, कहीं भी भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, because they have the cheating propensity inside. But who has the sharanagati mood, who want to really get advancement, who want to get really knowledge, Bhagwan makes sure that the right knowledge come to you, right? Right. Very nice. Okay, thank you everyone for joining us today. Any other questions or comment? Okay, good. And thank you, Kash Prabhu. Actually, we haven't met. If you can just tell me about yourself, how you connected to us. It's good to see you. You have very good points. Last time also, this time. Thank you so much, sir. Basically, my brother-in-law, Mr. Shailesh Prajapati, he requested me to attend one of your sessions last Saturday. I see. So basically, I am residing in Pune, and I got a small business of my own wherein basically I supply chemicals to the electronics manufacturing industry. Very nice. Yes, very nice. Prabhu. Thank you so much for letting me join this sessions actually. So Thanks to you. last Saturday was the first session that I listened, and I found it very informative. And it was really very good. So I'll be definitely continuing to join the sessions in future as well. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay, so we'll start our last padav of our satsang, which is chanting the name of the Lord. Pragya Mataji, you ready with the counter? Are you ready with the counter, Mataji? Okay. Yeah, I have it. But phone જોઈએ છે પહેલા. Okay, I can have my phone.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita What? Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. So this is a mantra we are reciting in the beginning of the chanting to get the blessing of Panchatattva. Thank you. You can start, Mataji. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna. Thank you once again. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hari Bol. We recharge for a week now. Very well. Thank you. Thank you, Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Hare Krishna. Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.